اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز تو یہ کہانی حکومت تعاون کرتی ہے یا خود ہی اپنے دوستوں کے تعاون؟ گورنمنٹ کا کوئی تعاون نہیں ہے. بیت المال نے 2-3 سال پہلے 2000 بچوں میں سے 25 بچے بیت المال نے اڈاپٹ کیے تھے. ان کا خرچہ انہوں نے دینا شروع کیا تھا لیکن وہ بھی 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے. آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر، آپ لوگوں کی زکوٰۃ کے بغیر اس ادارے کو چلانا ناممکن ہے. لوگوں تک پیغام جاتا ہے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سندس فاؤنڈیشن کے اندر پلیٹلیٹس بنانے والی مشین موجود ہے. میگا یونٹ پلیٹلیٹس کی سہولت موجود ہے کہ وہ بجائے لاہور جانے کے، وہاں پہ اتنا ایکسپینس کرنے کے، وہ سندس فاؤنڈیشن ہے اور الحمدللہ یہ سروس ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کے کرم و فضل سے، اس کی توفیق سے آج ہم سندس فاؤنڈیشن جہاں پر جو بچے بیمار ہیں، تھیلیسیمیا کی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج 3 رمضان المبارک حضرت اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم مثال، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم تھا. انہی کی توفیق سے ہم ادھر ہمارا سانس انہی کے نام، ہر نیکی انہی کے نام. تو آج ہم بیمار بچوں کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے ہم سندس فاؤنڈیشن میں حاضر ہوئے ہیں. جیسے ڈاکٹر سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، بچوں کو ملتے ہیں، ان کو تحائف پیش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نیکی کو اللہ پاک ہم قبول فرمائے. کہ یہ سب سے زیادہ جو ضروری ایک پیغام لوگوں کو پہنچانے والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا بیماری ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کے اندر 10% لوگ کیریئر ہیں. کیریئر ہم انہیں کہتے ہیں، تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں. جتنے یہ اندر والدین بیٹھے ہوئے سارے کیریئر ہیں. تھیلیسیمیا کیریئر ہونا یا تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. وہ بندہ ایک نارمل انسان کی طرح لائف گزارتا ہے، نہ کبھی اسے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ زندگی میں کبھی اس نے خون لگوایا ہوتا ہے، نہ ہی اسی کی کوئی فزیکلی کوئی ایسی علامت ہے جو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ تھیلیسیمیا کیریئر ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ 2 کیریئر لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو جو بچے ان کے آتے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر آتے ہیں. تو یہ بڑے ہی ضروری جو یہ پیغام ہے کہ یہ ہم اپنے معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس اس چیز کی پہنچائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ایچ پی الیکٹروفورسز ہے. یہ سامنے ہماری مشین ہے جس کے اوپر ہم یہ ٹیسٹ ایچ پی الیکٹروفورسز ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ عام تو نہیں، شوکت خانم اس کا 4200 روپے چارج کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 2000 روپے ایک ٹیسٹ کا کاسٹ آتی ہے. جو دے سکتا ہے کوئی بھی ہے ٹیسٹ کرائے، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنا خرچہ پے کر کے کرائے، جو افورڈ ہے، جو نہیں کر سکتا وہ ہمیں بتائے، ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے اس کا بھی کر دیں گے. لیکن شادی سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ اب آنے والی نسل جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا سے بچ جائے. یعنی کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ ضرور یہ بہت ضروری ہے. یہ میں یہ تھوڑا سا ایک بتا دوں آن ایئر، آپ بلکہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں کہ جتنی ہماری بلڈ کلیکشن ہے 90% بلڈ، جتنی اگر روز گجرانوالے کے اندر 100 بلڈ کا ڈونر عطیہ کرتے ہیں تو اس میں سے 90 بیگ تھیلیسیمیا بچوں کو لگتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑا فریکوینٹلی بار بلڈ لگنا ہوتا ہے. 90 بیگ تھیلیسیمیا کو بچے لگتے ہیں اور 10 بیگ ہیں جو عام کوئی ڈلیوری کیس ہے، کوئی آپریشن ہے، کوئی خون کی ویسے کمی ہے، صرف 10%. اگر یہ تھیلیسیمیا بیماری کم ہوگی تو یہ پرسنٹیج کم ہوگی اور دوسرے مریضوں کو زیادہ آسانی سے ان کی جان بچانے میں آسانی ہو سکتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مشین شوکت خانم لیب کے اندر یوز کرتی ہے، جب بھی وہ مشین پرچیز کرے تو اس اسٹینڈرڈ پہ پرچیز کرے، مشین انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے. یہ ایک آرکیٹیکٹ مشین ہے. یہ بلڈ لگانا کوئی بہادری نہیں ہے، صرف مند خون لگانا بہادری ہے. جو بھی ہم بلڈ دیتے ہیں، بلڈ کو پہلے ہم یہ آرکیٹیکٹ مشین ہے. اور یہ ہمیں فخر ہے کہ پورے پاکستان کے اندر چغتائی لیب، سندس فاؤنڈیشن اور شوکت خانم وہ اس مشین کے اوپر ٹیسٹ کر کے بلڈ مریضوں کو دے رہے ہیں. باقی جتنی لیب ہے وہ ان کا جو اسکریننگ شدہ بلڈ ہے وہ غیر سیٹسفائی ہے، اس سے ڈیزیزز پھیل رہی ہیں، کوئی بات پھیل رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہماری مشین ہے سلیکٹ ہے، یہ آٹومیشن مشین ہے. یہ جگر کے ٹیسٹ ہیں، گردوں کے ٹیسٹ ہیں، شوگر پروفائل ہے، تھائرائڈ پروفائل ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی اگر پیشنٹ آتا ہے تو یہ آٹومیشن مشین ہے، فوراً رزلٹ ہمیں دے دیتی ہے. اس کو ہم ویٹنگ ایریا کے اندر بتا کے کیا گھنٹے کے اندر یہ جو ہماری مشین ہے تو یہ عام پبلک کے لیے تو نہیں ہے، لیکن جو ہیموفیلیا والا کوئی بچہ فرسٹ ٹائم آتا ہے، ڈائگنوز ہوتا ہے کہ جن کو یہ بلڈ جمنے کی صلاحیت نہیں جن بچوں کو ہوتی ہے، ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ باقی اس کی ہیموفیلیا بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس سے خون نہیں جم رہا، تو ان کو چیک کرنے کے لیے یہ مشین ہے کہ اس کے اوپر ہم ڈائگنوز کر کے فائل بنتی ہے. اس طرح یہ اگر آپ دکھائیں، یہ پلازما ریفریجریٹر ہے جس کے اندر نا
प्लाज्मा स्टोर करते हैं। ये -60 इसका टेम्परेचर है इस टाइम। ये प्लाज्मे के लिए ये वाइट सेल जो हीमोफीलिया बच्चों के लिए हमने रखे हुए हैं। आम किसी लैब का अगर आप विज़िट करें वहाँ पे उन्होंने ये प्लाज्मा है कि फ्रिज के ऊपर वाले खाने के अंदर सिर्फ स्टोर किया वहाँ पे -20, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन होती है कि बहुत कम भी टेम्परेचर रखना है तो कम से कम 40 -40 ज़रूर, लेकिन वो -20 की जो फ्रीज की जो होता है उसकी एक्यूरेसी नहीं रहती, वो उसका वो काम नहीं करता है। तो जो यहाँ पर करना चाहिए वो वाइट सेल है, ये रेड सेल है। वाइट सेल हीमोफीलिया बच्चों को लगते हैं, ये जो रेड सेल है ये थैलेसीमिया बच्चों को लगते हैं। अब इसका भी टेम्परेचर जो होता है 2 और 8 के दरमियान, अगर 8 से ऊपर चला जाएगा ब्लड वेस्ट हो जाएगा, अगर 2 से डाउन चला जाएगा फिर भी ब्लड वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बैग एक इंसान की ज़िंदगी है। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन इसका हो जाए, इसकी स्क्रीनिंग ठीक ना हो तो ये बजाय हम किसी को ज़िंदगी देने से उसको मौत की करते हैं। ये हमारा ब्लड सीजर है, ऑटोमेशन सीजर है। आम लैब के अंदर क्या कहते हैं, उन्होंने जब बैग को ब्लीड करना होता है ऐसे गिरा लगाते हैं, गिरा लगा के ये सीज़र होता है, सीज़र से काटते हैं। उसमें क्या होता है कि जब सीज़र को आप इसे काटेंगे इस ब्लड को वो टच करके सीज़र उतरेगा, और जब दूसरे को काटेंगे तो वो उसके अंदर जो इसकी जरासीम्स है वो उसको टच करेंगे, वो अगले को टच करेंगे, अगले को टच करेंगे। इसके अंदर रेस चल रही हैं, शुआएं चल रही हैं, ये स्टीराइड है, इसको स्टीराइड करता है। स्टीराइड करके इसको करके प्रेस करके ये कट करता है, दरम्यान कोई चीज़ टच नहीं होती और ये कंटामिनेशन इसके अंदर नहीं होती। ये ब्लड -8 टेम्परेचर के ऊपर होता है, या 2 और 8 के दरमियान टेम्परेचर पर होता है। ये ब्लड जब पेशेंट को देना होता है तो ये 37, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। ये 37 टेम्परेचर रखने के लिए 5 मिनट इसमें ब्लड को रखते हैं तो वो हमारी बॉडी अगर ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये ब्लड के लिए ब्लड फार्मर है, ये प्लाज्मा कंपनी की आम हर लैब के अंदर चल रही है। वो 4, 4.5, 5 लाख रुपये की मशीन है और ये 20 लाख रुपये की मशीन है। जी ये सिस्मैक्स कंपनी की जर्बियन मशीन है। इसके ऊपर जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसकी पर टेस्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। मेन चीज़ बताने वाली है वो ये है कि ये एक हमारी मशीन है, इसे हम कहते हैं मेगा यूनिट प्लेटलेट सेपरेटर। ये गुजरांवाला के अंदर DHQ हॉस्पिटल के अंदर अगर है भी तो वो ऑपरेटर कंडीशन के अंदर नहीं है। हाँ जी। और इसका मेन ये है कि ये जब हम डोनर से सुई लगा के इस मशीन के ज़रिए सेपरेट करते हैं तो ये खाली जो प्लेटलेट्स खून के अंदर रेड सेल हैं, वाइट सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं और काफ़ी चीज़ें मिल के खून बनी हैं, तो ये खाली जो प्लेटलेट्स हैं ये बैग के अंदर कर लेती है। बाकी रेड सेल, वाइट सेल, पानी, वो सब सारी की सारी चीज़ें बॉडी के अंदर रहती है। इस खाली लोगों तक पैगाम जाता है तो उनको ये पता होना चाहिए कि सुंदर फाउंडेशन के अंदर प्लेटलेट्स बनाने वाली मशीन मौजूद है, मेगा यूनिट प्लेटलेट्स की सूरत मौजूद है कि वो बजाय लाहौर जाने के, वहाँ पे इतना एक्सपेंस करने के, वो सुंदर फाउंडेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम हाजिर हैं सुंदर फाउंडेशन के एडमिन ऑफिसर जनाब गुलाम नबी साहब, उनके पास उनकी खिदमत में हाजिर हैं। उनसे हम मालूमात लेते हैं बच्चों की किस तरह वो देखभाल करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस फाउंडेशन 98 से लेके 1998 से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि ये बच्चा जब दुनिया के ऊपर आता है तो ये माँ के पेट से बीमारी साथ लेके आता है। इसमें बच्चा 3 माह तो उस ब्लड के ऊपर गुजारता है जो माँ के पेट से साथ लेके आता है। फिर उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से खून बनाने वाला निज़ाम नहीं होता, या अगर खून बन रहा होता है तो उसकी ज़रूरत से बहुत कम है। इन बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए हर 10 से 15 दिन बाद खून के एक बैग की ज़रूरत होती है। ये बैग जैसे हम नॉर्मल इंसान हैं, हम खाना खाते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, ये थैलेसीमिया बच्चों को हर 10 दिन बाद खून का एक बैग लगता है तो ये अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह एक हीमोफीलिया डिजीज़ के हमारे पास बच्चे आते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि उन बच्चों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। उन बच्चों को अगर चोट लग जाए, ज़ख्म आ जाए, उनका खून निकलना शुरू हो जाए तो उनको जब तक हम ताज़ा खून लेके उसमें से वाइट सेल सेपरेट करके 2 बैग 3 बैग उनको ब्लड के नहीं लगाएंगे तो उनका खून स्टॉप, जो कि अल्लाह की तरफ से उनके अंदर हमें चोट आती है, ज़ख्म आता है, थोड़ी देर खून निकलता है। अगर उन बच्चों को जो हीमोफीलिया वाले बच्चे उनको चोट आ जाए, ज़ख्म आ जाए, खून निकलना शुरू हो जाए, चाहे वो ऊपर मेडिसिन लगाएं, पट्टी लगाएं, बैंडेज करें, लेकिन उनका इंटरनल जिल्द के अंदर खून चलना शुरू हो जाएगा, तब तक खून स्टॉप नहीं होगा जब तक उनको हम वाइट सेल, खून के वाइट सेल नहीं लगा देंगे। इस तरह हमारे पास खून के रिलेटेड कुछ दूसरी बीमारियों के भी मरीज़ आते हैं जिनमें एप्लास्टिक एनीमिया है, लुकीमिया है, वॉन विली ब्राउन डिजीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन इस टाइम लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पंजाब के जो मेजर सिटीज़ हैं तमाम शहरों के अंदर काम कर रहा है। अगर मैं ये गुजरांवाला सेंटर
एक जो गुजरांवाला सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको महीने में 1 से 2 दफ़ा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये यूट्यूब के चैनल से मैं रमज़ान के हवाले से एक जो पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहूँगा वो ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि जो एक खाली ब्लड बैग जिसमें हमने खून डालना होता है वो आज से 3 माह का पहले बिल हम देखें तो वो सिर्फ 455 रुपये में आ रहा है, जो आज 800 रुपये का भी नहीं मिल रहा, 800 रुपये में चला गया है। बच्चों को एक निडल लगती है, सुई लगती है, बी प्राउन का 20 गेज बर्नोला है, वो 3 माह पहले का बिल देखते हैं तो वो 150 140 रुपये का आ रहा था, जो अब 300 रुपये से भी ऊपर उसकी प्राइस चली गई है। इस तरह लैब के जितने केमिकल्स हैं वो कम से कम 50% उनकी रेट बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये इदारा एक जो सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाले की ये ब्रांच है, ये तकरीबन एक महीने का जो इसका ख़र्चा था ये पहले 35 से 40 लाख रुपए था, अब ये महंगाई की वजह से यही खर्चा 45 से 50 लाख रुपए चला गया है। लेकिन ये जो थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं ये नॉन अफोर्डिंग है, ये बेचारे आप एक पैसा भी पे नहीं कर सकते। ये आप अंदर जाके इन बच्चों से आपकी मुलाकात भी कराते हैं, उनसे इंटरव्यू भी करते हैं, जिनको हर 15 दिन बाद एक बैग की ज़रूरत है, वो अपना ख़र्चा हर दफ़ा कहाँ से करेंगे। कम से कम एक बच्चे को जब एक बैग लगाते हैं तो इदारे का टेस्टों की मद के अंदर और ब्लड बैग की मद के अंदर, निडल की मद के अंदर, फ़िल्टर की मद के अंदर तकरीबन इदारे का 5000 रुपये उसे सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ख़र्चा है और उसकी मेडिसन इसके अलावा है। लेकिन वो बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं कि जो बेचारे अपने आने का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आने जाने का किराया भी हमने देना होता है, यहाँ पे लंच भी हमने उनको देना होता है। तो ये आप लोगों के तामन के बगैर, आप लोगों की ज़कात के बगैर इस इदारे को चलाना नामुमकिन है। तो इस यूट्यूब चैनल की वसातत से यही पैगाम है कि आप लोग आगे बढ़ें, इन थैलासीमिया बच्चों के लिए अपनी ज़कात खैरात, अपने सदक़ात में से कुछ ना कुछ ज़रूर अतिया करें, ताकि ये बच्चे भी जिस तरह आपके बच्चे घर के अंदर नॉर्मल खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, इनको भी जब ब्लड बैग लग जाता है तो ये 15 दिन आम बच्चों की तरह इन्हें कोई बीमारी नहीं होती, ये भी अपने माँ बाप की आंखों के सामने खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि इनको इनकी ज़िंदगियों के चिराग को रोशन करने के लिए, इनकी ज़िंदगियों के चिराग को अपना जो दिया जलाने के लिए आप जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो आप अपना खून का दिया करके भी कर सकते हैं, अपनी ज़कात दिया करके भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये हीमोफीलिया बीमारी है, ये हीमोफीलिया वाले देखने में लग रहा होता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, इन्हें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई फिजिक इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ब्लड क्लॉटिंग, इनके अंदर खून जमाने वाले निज़ाम को नहीं है। इन्हें जब भी चोट आनी है, जख्म आनी है, खून निकलना शुरू हो गया तो ये खून निकलते रहते हैं। अब इन बच्चों की उम्रें, कितनी उम्र हो गई है आपकी? 23 साल, 21 साल। ये 23 साल, बड़ा भाई 23 साल का है और छोटा 21 साल के है। और ये 23 साल मुसलसल, ये जब भी ये बच्चा अगर रात को सोया है, अपनी दब आ गया, अपना ऊपरी दब आ गया, तो अपने दब से इसके अगर खून निकलना शुरू हो गया, कहीं जल्दी के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ये जब तक इसको ये वाइट सेल के बैग नहीं लगेंगे तब तक आज इसके 2 बैग लग रहे हैं, एक भाई को लगाने आए हैं, एक भाई को एक बैग लगा हुआ है और ये 2 बैग लगे, उसको एक वक्त के ऊपर 3 बैग लगेंगे, तब जाके इसका कोई जहाँ पे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको रोकना थोड़ा ज़्यादा। ये है कि हमारा कभी ब्लड निकलता है दांत से, नाक से, कहीं से भी निकलना शुरू हो जाता है, रात को सोते हैं जहाँ कोई भी जोड़ दर्द करना शुरू हो जाता है। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें जब मर्जी हमने हॉस्पिटल आना, प्लाज्मा लगवाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। तो जब भी आते हैं अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनकी आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी ज़िंदगी के है। अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं। ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर ये प्राइवेट तौर पे ये प्लाज्मा एक बैग तैयार किसी भी लैब के अंदर जाते हैं, गुजरांवाला के अंदर पहले तो इतनी कोई लैब है ही नहीं जो ये वाइट सेल रेड सेल सेपरेट करती है। अगर कोई लैब कर रही है तो सबसे पहले तो ये अगर आज 3 बैग लगे हों तो 3 बंदों के तरले करेंगे, 3 बंदे साथ लेके जाएंगे को अपना ब्लड देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ब्लड देंगे, ब्लड देने के बाद उनकी लेबॉर्ट्री के टेस्ट होंगे, जो जिस लेवल के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं कम से कम हमारा 3500 रुपये इनके ऊपर खर्चा है, ताकि कोई ऐसा बीमारी वाला ब्लड इनको ना लग जाए जिसके अंदर हेपेटाइटिस हो, जिसके अंदर एड्स हो, जिसके अंदर जुकाम हो, सिफिलिस हो, 6-7 ऐसी डिजीज़ होती हैं, अगर उनको चेक ना करें तो वो
अगर एक जो बंदा ब्लड दे रहा है उसके अंदर होंगे तो जिसको ब्लड लग रहा है वो भी उसे ट्रांसफर भी होगी, हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर एक बैग हम सुंदर फाउंडेशन के ऊपर अंदर तैयार करते हैं तो कम से कम हमें इस बैग समेत टेस्ट समेत लगाने समेत ये तक 5,000 रुपये कास्ट आती है, लेकिन इनके ऊपर कोई नहीं, ये आपको फ्री कास्ट में। वो सारी फ्री में होता है। जो लोग ज़कात तो ये देते हैं, काइंडली हुकूमत तावन करती है या खुद ही अपने दोस्तों के तावन से? रिफाई दर है, गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक हो। बैतुल माल ने 2-3 साल पहले 25 अब 2000 बच्चों में से 25 बच्चे बैतुल माल ने अडॉप्ट किए थे, उनका खर्चा उन्होंने देना शुरू किया था, लेकिन वो भी 2 साल हो गए हैं कि वो नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है, ये ऑन एयर है कि ये सारे का सारा जो आम लोग हैं जो वही ज़कात तावन देते करते हैं। वो अल्लाह उससे को से दे, अल्लाह को सलाम। इनको पता है कि ये कितनी तकलीफ, जब बच्चे को चोट आती है, जख्म होता है, क्या चलता है, ये अभी आए हैं, ये लगाने लगे मतलब। बहुत मेहनत से, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे जो आप ये अदा कर रहे हैं, और अल्लाह पाक आपसे ये खिदमत ले रहा है, ये उसकी तौफीक से है। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों से इसका अजर अता फरमाए। सर बहुत शुक्रिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से मरीज़ों की इजाज़त करके अल्लाह के फजल से जब बाहर तशरीफ़ है, आपने देखा तो कैसे उन्होंने हमारे साथ तामन किया, सारी हमें उन्होंने गाइड किया, मशीनरी के हवाले से, उनकी तीमारदारी के हवाले से जदीद तरीका है। इसके बाद उनके बाद माशाल्लाह मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि हर मशीनरी लेटेस्ट से लेटेस्ट इनके पास मौजूद है, और इनका तरीक़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। मैं दोस्तों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस माह मुबारक में ज़कात, अतियात, जो कुछ भी है वो सुन्नत फाउंडेशन को इधर मुहैया करें, ताकि ये अच्छे तरीके से मरीज़ों को उनके साथ तामन कर सकें, उनकी ज़िंदगी का असबाब बन सके। ये बिल्कुल से पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।